Antitoxins, more appropriately called antibodies. The term toxin and antitoxin. Toxin is a general term used for any poisonous substance produced by an animal or a plant or a bacteria. तो कोई भी poisonous substance है जो कि harm करेगा, that is termed as toxin. Example: snake venom, sting poisons of scorpion, insects, etc., or even poisonous chemicals released by the pathogens growing inside the body. तो ये सब क्या हो गया? ये सब को एक कैटेगरी में हम रखेंगे. तो कौन सा कैटेगरी है ये? Toxins. Antitoxin was the name given to any chemical substance produced inside the body. कहाँ ये प्रोड्यूस होगा? Inside the body. In response to the entry of the foreign poisonous substance. टॉक्सिन एंटर किया, अब हमारा बॉडी क्या प्रोड्यूस करेगा? एंटीटॉक्सिन. Antivenins for snake bites are produced inside animals like horses. Presently, the more general term antibody is used instead of antitoxin. ठीक है? Antibody is a blood serum protein produced in response to the injected antigens. ठीक है? तो एंटीबॉडी जो है ऐसा नहीं कि रेड ब्लड सेल है या वाइट ब्लड सेल है, वो नहीं, ये सब नहीं है. वो एंटीबॉडी जो है एक केमिकल है. ठीक है? एक केमिकल या फिर एक मॉलिक्यूल है जो कि प्रोड्यूस हो रहा है. क्लियर है क्या? इट मे बी अ मॉलिक्यूल और इट मे बी अ सीरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स. क्लियर है? Suppose someone has actually got a disease such as diphtheria. In such a case, injecting pre-prepared antibodies from some other source is helpful. ठीक है? तो डिप्थीरिया को जो है मारने के लिए जो एंटीटॉक्सिन है ना, अब हमारे बॉडी भी में भी अंदर में प्रोड्यूस होगा और हो सकता है ऑलरेडी रेडीमेड है मार्केट में अवेलेबल, तो वो लेकर के हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं. इट्स हेल्पफुल. फॉर दिस एन एंटीबॉडी कंटेनिंग सीरम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ब्लड ऑफ हॉर्सेस, रैबिट्स एटसेट्रा, in which the disease is artificially produced in a mild. ठीक है? समझ में आ रहा है ये सर? हम लोग क्या किए? रैबिट में हम लोग इंसर्ट कर दिए. क्या इंसर्ट किए रैबिट में? डिप्थीरिया का जर्म. ठीक है? तो अब रैबिट का बॉडी भी तो प्रोड्यूस करेगा ना एंटीबॉडीज. रैबिट का प्रोड्यूस जो एंटीबॉडीज करेगा, वो एंटीबॉडीज हम लोग कलेक्ट कर लिए किससे? रैपिड्स. मोस्टली ऐसा ही होता. ठीक है? मोस्टली ऐसा ही होता. इनफैक्ट पता है आपको इंसुलिन का? पता है आपको? और कितने पिग्स को मारा जाता था? दिखना है मेरे पास, वो डेटा तो है मेरे पास. ठीक है? so many pigs getting slaughtered for insulin. ठीक है? लेकिन अभी हम लोग जो है जेनेटिकली उसको प्रिपेयर कर लेते हैं. इन्हें आगे बढ़ते हैं. ट्रीटमेंट विथ सच एंटीबॉडीज इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनाइजेशन, क्योंकि पहले से एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड है और उसको आप इंसर्ट करें. Hopkins Institute in Bombay and other institute at Kasauli are preparing several such anti-sera. Antivenin for treating snake bite is also based on the same principle. Clear है? आगे बढ़ते हैं. Antiseptics and disinfectants prevent catching diseases. Antiseptics, these are mild chemical substances which when applied on the body kill germs. These substances are in such mild concentration that they cause no harm to the skin and the body. तो कुछ कुछ केमिकल सब्सटेंसेस हैं जिससे कि सीधा डिजीज जर्म जो है मर गया. कहाँ पे मरा? आउटसाइड द बॉडी. इट्स नॉट किलिंग इनसाइड द बॉडी, नहीं हो रहा है. कहाँ पे? आउटसाइड द बॉडी हो रहा है. ठीक है? लाइजॉल, कार्बोलिक एसिड, आयोडीन, बेंजोइक एसिड, mercurochrome, boric acid, etc. in dilute solution are good antiseptics. Certain antibiotic creams also serve the same purpose. A caution: do not use commercial names as examples of antiseptics in your examination answer. Names like Dettol, Savlon, Listerine, Soframycin are all commercial names. ठीक है? केमिकल कुछ अलग है,
They may have one or the other active ingredient individually or in combination. It is these active ingredients which actually serve as antiseptics. Next, disinfectant. These are the strong chemical substances that are applied on spots and places where germs thrive and multiply. मोस्टली जो है ये एंटीसेप्टिक को हम लोग कहाँ पे लगाते हैं? अप्लाइड ऑन बॉडी, स्किन. हम लोग स्किन है ना बाहरी में अप्लाई करते हैं. क्लियर है क्या? और बहुत सारे इसमें आप देखिएगा, इसमें लिखा होगा डू नॉट स्वेलो, और में लिखा रहेगा डू नॉट स्वेलो, या फिर होगा इमीडिएटली कॉन्टैक्ट द डॉक्टर इफ इट इज स्वेलोड, ऐसा लिखा रहेगा. ठीक है, तो ये आउटसाइड द बॉडी काम करेगा. क्लियर है क्या? अब ये डिसइंफेक्टेंट क्या है? आउटसाइड द बॉडी हम लोग अप्लाई करते हैं. बहुत बार प्रचार भी आता है एंटीसेप्टिक क्रीम, है ना. हाँ हाँ, खुशबूदार एंटीसेप्टिक क्रीम बोरोलिन है ना, एक प्रचार आता था पहले, वही याद कर रहे थे क्या? खुशबूदार एंटीसेप्टिक क्रीम बोरोलिन डिसइंफेक्टेंट्स. ठीक है, लेकिन अगर स्कूल में आएगा कि नेम्स ऑफ एंटीसेप्टिक्स, बोरोलिन लिखिएगा तो गलत हो जाएगा. नहीं है ना, बोरोलिन उस ट्यूब में जो कंपाउंड को यूज किया गया है उसको लिखिए. ठीक है, बोरो प्लस है. जब उठिएगा तो चेक कर लीजिएगा बट. ठीक है, disinfectants. These are strong chemical substances that are applied on spots and places where germs thrive. ठीक है, अब एक तो है भैया कि बॉडी में अप्लाई करके रखो तो अगर जर्म्स वगैरह आएगा भी बॉडी पे रहेगा तो भी मर जाएगा. ठीक है, जो पहले से वो मर जाए. दूसरा है कि जहाँ पे जर्म्स है वहीं पे जा करके जर्म्स को मार दो. ये है किसका काम? डिसइंफेक्टेंट. क्लियर है क्या? यस और नो? यस और नो? ये किसका काम है? डिसइंफेक्टेंट का. Commonly used disinfectants are Cresol, Phenol, Lysol, 40% formalin, lime, Bordeaux mixture, DDT, etc. ठीक है, अब देखिए प्रिकॉशन क्या है. All disinfectants are strong and should not come in contact with the human skin. ठीक है, अब आप सोचो कि है ना उससे जर्म मर जाता है तो मेरे बॉडी के ऊपर भी जर्म्स जो है वो मर जाएगा. ठीक है, लेकिन अगर ध्यान से समझिए तो डिसइंफेक्टेंट कैसे मारता है उसको? कैसे मारता है उसको? तो एक्चुअली उसका जो है, जो भी है ना, कोई भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसके अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं. रेस्पिरेटरी प्रोसेस, डाइजेस्टिव प्रोसेस, है ना, ये सब होता है. कोई एक प्रोसेस को बंद करने से मर जाता है वो बच्चा. ठीक है, तो दैट विल हैव एन इफेक्ट ऑन आवर सेल्फ ऑल्सो ना. क्लियर है क्या? तो इसीलिए एंटीसेप्टिक में अगर देखिए ध्यान से, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, क्या है? माइल्ड कंसंट्रेशन. ठीक है, इसका कंसंट्रेशन बहुत ही कम रहता है. ठीक है, तो अगर आएगा डिफरेंशिएट बिटवीन एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट, तो पहले आप लिख सकते हैं ये बॉडी पे अप्लाई होता है और ये क्या है? माइल्ड. ये वैसे भी माइल्ड केमिकल सब्सटेंस है और कंसंट्रेशन भी इसका माइल्ड ही रहता है. क्लियर है क्या? यस और नो? ठीक है, ऑल डिसइंफेक्टेंट्स आर स्ट्रॉन्ग एंड शुड नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद द ह्यूमन स्किन. स्ट्रॉन्ग हीट एंड बॉइलिंग ऑल्सो डिस्ट्रॉय जर्म्स एंड मे बी कॉल्ड फिजिकल disinfectants. Deodorants are neither antiseptics nor disinfectants. They only serve to mask a bad smell. ठीक है, deodorant से जो है ना कुछ मरता वरता नहीं, खाली थोड़ा सा ये हो जाओ. हाँ ठीक है, इसीलिए हर दिन नहाना चाहिए. चलिए आगे बढ़. Differences between antiseptics and disinfectants. Antiseptics and disinfectants. Mild germ killing chemicals, they are antiseptics. Disinfectant जो है strong है. They cause no harm to skin and body. Clear है क्या? या फिर बहुत कम harm. No harm भी, they cause less harm. ठीक है,
but disinfectants may cause harm to skin and body. Antiseptic is applied on body, example iodine. Disinfectant is applied on spots, example phenol या फिनाइल बोलते हैं ना, फिनाइल. या आयोडीन क्या, अब सॉल्ट भी अगर आप चाहो तो सॉल्ट भी अगर रख दोगे तो उससे भी बहुत सारा जर्म्स मर जाता है. आयोडीन को तो बहुत सारे माइक्रोब्स हैं ना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ना, तो अलग अलग चीज़ से उनको ये अलग अलग चीज़ से प्रॉब्लम होगा. क्या एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स कितना बड़ा है? ओ ये तो ख़त्म हो गया.